So, hello everybody, my name is Hukum Chaudhary. Some of you may know me and some of you don't. So, this video is going to be the second episode of a playlist जो कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है. द मैन के नाम से है वो प्लेलिस्ट, उसका ही सेकंड एपिसोड होने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम थॉट्स ऑफ माइंड. Okay, let's start with the introduction. So, hi everybody, my name is Hukum Chaudhary and I am a man of strong beliefs and principles. I believe in high values and I also believe that we should build up our knowledge of the world through inductive reasoning by reflecting on all possible methods of investigation available to our imagination. And by doing that, I concluded that the best among them is induction, which means gathering a large number of facts and figures in order to detect the pattern of events that are going to take place in the time. एक तरीके से कि अगर तुम्हें पढ़ना है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, इसके लिए आपको जरूरत है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करो अच्छे से और फैक्ट्स और फिगर्स को, डाटा को, एक ज्यादा से ज्यादा डाटा को एनालाइज करो. I have a question. What does it mean to be a man? How does one become a man? When we are trying to be something or reach somewhere, the picture of our destiny should be clear in our mind. When we talk about men, a lot of things can come to our mind. Mustache, beard, harshness, ego, hardworking, strength, humor, aggression, booze, war, courts, fight, swords, gun, dance, बारूद, गालियां, ये सब चीजें. And all those words you might be thinking of right now. But apart from this, what does it take to be an ideal man? What is an ideal man? And what does it mean to be an ideal? The great Greek philosopher Plato says a philosopher king is chosen from the guardian class. Guardian class is a class of people which are responsible to rule the society. मतलब सभी aristocrats, diplomats, kings, queens and philosophers, that class which is consists of highly intelligent people, powerful people, is a guardian class. According to Plato, a man is chosen from that class and subjected to rigorous education and testing with a focus on wisdom and justice in leadership. His understanding of internal ideals enables him to benefit society as a whole. मतलब जो पूरे समाज को एक तरीके से बेनिफिट कर सके, एक ऐसा आदमी आइडियल मैन. एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, हिज डिसिप्लिन, जिसका जो स्टूडेंट था, उसने क्या कहा, या ग्रेट सोल्ड मैन अचीव अ स्टेट ऑफ फ्लिशिंग, मतलब कि एक ऐसी स्टेट को पा लेता है एक आइडियल मैन जिसके अंदर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस होती है, कोई मोमेंटरी हैप्पीनेस नहीं होती कि टेम्पररी आई, टेम्पररी खत्म हो गई, फिर बात खत्म. ऐसी स्टेट नहीं. एक ऐसी स्टेट से उसने नाम दिया यूडोमेनिया कि मतलब एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर कंटिन्यूअसली, इंटरनली, एक्सटर्नली हैप्पीनेस, प्राइड, ऑनर, करेज और मैग्नेटिमिटी लगातार बनी रहे. एक ऐसी स्टेट को अचीव करने वाला इंसान एक आइडियल मैन. एंड नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ नीत्शे, अ जर्मन फिलोसोफर, जो कि आजकल बहुत, मतलब रील्स वगैरह पे तुम देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड और सबसे नया जो हम कहते हैं, जो सबसे एडवांस जो पीढ़ी का जो फिलोसोफर था, नीत्शे. अकॉर्डिंग टू हिम, an ideal man is a someone who creates personal meaning in a meaningless world. मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने गोल को, अपने एक ऑब्जेक्टिव को तराश सके एक ऐसे मीनिंगलेस सोसाइटी में, दुनिया में जहाँ पे सब कुछ केओस में है, सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर है, एक ऐसा आदमी. एंड अकॉर्डिंग टू किर्केगार्ड, नाइट ऑफ फेथ, जो उसने एक शब्द उपयोग करा एक आइडियल मैन के लिए, is a someone who confront existential meaninglessness with defiance. मतलब एक ऐसा आदमी जो नियमों में ना बताओ, जो So what we are talking about Nietzsche or Kierkegaard. According to Kierkegaard, a man who confront existential meaninglessness with defiance, कि मतलब rebel, he is a rebellion one, who oppose the meaningless laws
द मीनिंगलेस सोसाइटी, द एब्सर्डनेस प्रेजेंट इन सोसाइटी एंड ऑर्डर, जो उसको डिफाई करे, जो उसको तोड़ दे, जो नियम में, जो बेतुके के नियमों में ना बंधे जबरदस्ती दूसरों को खुश करने के लिए, जो अपने गोल्स को, प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को सबसे ऊपर रखता हो। एक ऐसा आदमी जो निडर हो, गलत को गलत कहने में ना डरे, एक ऐसा आदमी अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड इज आइडियल मैन। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस डेफिनेशन ऑफ आइडियल मैन वी हैव फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स फिलोसफर्स। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं कि जो अलग अलग समय के लोग थे, अलग अलग तरीके से पले बड़े, अलग अलग कंडीशंस में ढले हुए लोग, everyone is a product of his time. From this definition, now we have an idea what we are looking for. तो हमें एक चीज तो पता चलती है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, हर किसी का टाइम अलग हो सकता है। अब जैसे देखो तो प्लाटो के अकॉर्डिंग एन आइडियल मैन इज अ वन हु सेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। एंड अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड एन आइडियल मैन इज अ मैन जो कि बेतुके लॉज को अपोज करे, जो कि एक रेबेल हो, जो कि समझ लो डिफाइंस करे, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन समाज में, एक ऑर्डर में लाए। अगर वो चीज सही नहीं हो रही है तो ऑर्डर बनाने के लिए दोनों की डेफिनेशंस काफी अलग है, बट द मेन आइडियाज हियर टू हैव एन आइडियल मैन वो हमें मिल चुका है। नाउ आई विल ड्रॉ माय कंक्लूजन बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। स्टे विद मी। Our surrounding shape our perspective and attitude significantly. अब हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि हर किसी की लाइफ अलग होती है, उसका कल्चरल बिलीव्स, सोशल बिलीव्स एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस अराउंड हिम वो डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह से उसका जो पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड दुनिया के लिए डेवलप होता है वो अलग तरीके से होता है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। किसी के पास लाइफ एक्सपीरियंसेस कम उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहीं किसी के पास बहुत ही कम लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा उम्र के होने के बावजूद भी। तो हम कहते हैं ना कि कोई बंदा कम उम्र में ज़्यादा समझदार बन गया, वो इस वजह से होता है, उम्र की बात नहीं होती समझदारी में। Different circumstances give different traits to different kind of men. अब इन ये जो ट्रेट होते हैं इनको मैं अपनी भाषा में एक मेटाफोर की तरह डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द बिलो ट्रेट्स। और मैं बिलो इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सोशल हायरार्की में बिलीव करता हूँ जो नेचर ने हमें दी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया संचालित रूप से चल रही है। अगर वो हायरार्की टूटती है तो गड़बड़ी होती है और वो सोशल हायरार्की बनी रहनी चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले जो डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है डिफरेंट तरह के लोगों को बनाता है, उनके डिफरेंट ट्रेड्स देता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू टाइप ऑफ वर्किंग क्लास, देयर आर टू टाइप ऑफ जो सबसे निचले लो लेवल पे होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक देयर आर डीमंस, देयर आर पेजेंट्स। जो पेजेंट्स होते हैं वो सर्वेंट क्लास है, ये भी दोनों सर्वेंट्स क्लास ही हैं, पर ये क्या होता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। दे आर न्यूसेंस इन द सोसाइटी। जो मतलब विभत्स लोगों को देखें तो ना समझें, जो क्राइम करने के लिए पैदा हुए, माइंड ही क्रिमिनल है, तुम उन्हें चेंज कर ही नहीं सकते। दे आर न्यूसेंस इन द सोसाइटी। जो इस तरीके से ट्रेंड है उनका दिमाग कि वो शांति पसंद ही नहीं करते, उन्हें बस वायलेंस नजर आता है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पेशेंट्स हैं, जो कि अपने फियर के, अपने लोग की वजह से, एनफोर्समेंट की वजह से डर में रहते हैं, जो कंट्रोल रहते हैं। वे उनका कोई मॉरल नहीं है, उनकी कोई अपनी लाइफ नहीं है, उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि वे खुद से डिसीजन ले सके। दे आर जस्ट इन सर्वेंट क्लास, जो कि उन ऑर्डर्स पे काम करती है जो उसे इंस्ट्रक्ट करा जाता है। उनके पास खुद की कोई लाइफ नहीं होती, खुद का कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद का कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। दे डू व्हाट दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू एंड दीस डीमंस, दीस आर आउट ऑफ कंट्रोल। दे डोंट लिव लॉन्गर, क्योंकि उनके काम ऐसे होते हैं, उनके मौत जल्दी हो ही जाती है। इनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस का। दे आर ओनली मोटिवेटेड बाय देयर लस्ट, बाय देयर एंगर। अब इन दोनों में से फिल्टर होके एक सुप्रीम आदमी निकलते हैं दोनों की साइड से। The gentleman and a wild man. A wild man is a fantasy of every man who he wants to be. ये वो एक्सपेक्ट है जो ज्यादातर मर्दों को पसंद आए आता है, जो वो बनना चाहते हैं, जो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे लॉस की वजह से, एनफोर्समेंट की वजह से, या फिर अपने सोशल स्टेटस खोने की वजह से, कि वो ऐसा करेंगे तो चीजों को खो देंगे। और ये इनकी and these demons love that man, क्योंकि उन्हीं के बीच में से निकला है और ऊपर हो चुका है, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उनसे ज्यादा मोटिवेटेड है, उनसे ज्यादा कंट्रोल में है। उनकी वो आदमी जो वाइल्ड मैन होते हैं, they are not driven by their lust, they are not driven by their anger, but they are driven by their emotions to feel everything, emotions to capture everything. And there are gentlemen. Gentleman is a man who is wanted by mostly by the women. मतलब उनमें दिखेगा respect, control behavior और harmony, compassion.
वाइल्डमैन जो होते हैं इनके पास आर्मी होती, कंपैशन नहीं होता, दे आर नॉट मोटिवेटेड रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर। एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लो कि तुम कह रहे हैं कि दया करना मोरली राइट है, एक मोरल है कि हमें लोगों के लिए दया होनी चाहिए। तो अब ये देखो कि एक ताकतवर आदमी ने कमजोर आदमी को थप्पड़ मार दिया, और कमजोर आदमी ने कहा कि मैंने तुझ पर दया दिखाई और मैंने तुझे माफ कर दिया। माफ करना, दया दिखाना मोरली राइट चीज है, पर क्या वहां पे उसका मोरल जस्टिफाइड है? नहीं, क्योंकि वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता। वहीं अगर एक कमजोर आदमी एक ताकतवर आदमी को परेशान करे, उसे मतलब किसी भी तरीके से थप्पड़ मार दे, और वो ताकतवर आदमी चुप होके उसे कह दे कि छोड़ मैंने तुझे माफ कर दिया, वहां पे वो मोरली राइट है, उसका वो कंट्रोल में है अपने इमोशंस के, अपने बिहेवियर के और सिचुएशन के, तब भी वो उसे नहीं मार रहा, तो वहां पे वो दया है, वो जस्टिफाइड है। इसलिए मैं कहता हूं द पावरफुल पीपल हैव मोरल्स, और इनके कोई मोरल्स नहीं होते, ये बस डर और अपने एंगर और इन चीजों के पीछे छुपे रहते हैं, इनका कोई मोरल नहीं होता। दे आर नॉट मोरली अलाइंड, बट दीज मेन आर मोरली अलाइंड। दे हैव मोरल्स and they have high expectations and motives to do things in life. अब हम इन दोनों के इंटरकनेक्शन को समझते हैं। जब एक जेंटलमैन ट्राई टू इंटरैक्ट विद डीमंस, तो वो उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, दे डोंट लाइक टू बी गेट इंस्ट्रक्टेड। भले ही सर्वेंट्स उसको प्यार करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो, पर ये इसको कुछ नहीं मानने के हैं। वहीं एक वाइल्ड मैन जब जेंटलमैन के कुछ ट्रेट्स उठाकर अपने अंदर मिला लेता है, जब वाइल्ड मैन जेंटलमैन के वे ट्रेट्स टू बी इन कंट्रोल, टू बी इन ऑर्डर, टू सेट आउट पीस, तो वो आदमी रेस्पेक्टफुल हो जाता है डीमंस के लिए भी, क्योंकि वो उन्हीं में से निकला है, तो उनके अंदर उनके लोगों को जानता है, तो उनके लिए काम करने के लिए तत्पर है, वो उनके लिए भी सही फैसले लेगा। इस मंशा से डीमंस उससे डरते भी हैं, और डरते तो खैर इसलिए क्योंकि वो इनसे सुपीरियर है, वो लस्ट और एंगर से कंट्रोल नहीं है, तो वो ऐसे फैसले ले सकता है जो ये नहीं ले सकते, और वो इन्हीं में से सुपीरियर है, तो इनसे डरते हैं या फिर रिस्पेक्ट करते हैं। पीजेंट्स ऑन द अदर हैंड आइदर दे रिस्पेक्ट हिम और दे हेट हिम, या तो उसे हेट करेंगे या फिर रिस्पेक्ट करेंगे, पर केवल वाइल्ड मैन के अंदर पोटेंशियल होता है एक उससे ऊपर सुपीरियर जाने के लिए। एक जेंटलमैन को वाइल्ड मैन के ट्रेट्स लेने पड़ेंगे इससे ऊपर जाने के लिए। अगर वो दोनों क्लासेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो उसे कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि ऑन द ग्राउंड लेवल जब उसे इनसे डील करना है तो कैसा करना चाहिए। और एक वाइल्ड मैन को इससे डील करना आ जाएगा आसानी से, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब हम सामने वाले के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब हम सामने वाले का कुछ पता नहीं कि अगले पल क्या कर देगा, तो जब इसका सामना इन लोगों से होता है किसी भी रूप में, चाहे उसे काम पे रखना हो किसी को ऐसे को, या फिर कहीं झड़प हो जाए, या फिर किसी से कोई दुश्मनी हो जाए ऐसे लोगों से, तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर देंगे, किस हद तक गिर जाएंगे। इन लोगों को डील करने के लिए एक वाइल्ड मैन चाहिए जिसके अंदर जेंटलमैन के ट्रेट्स हो, तब वो एक आइडियल मैन बनता है। आइडियल मैन अकॉर्डिंग टू मी, आइडियल मैन अकॉर्डिंग टू दीज सर्कमस्टेंसेस जो आज की दुनिया में है, एक आइडियल मैन को दोनों तरह के लोगों से डील करना आना चाहिए, उसके लाइफ एक्सपीरियंस में दोनों तरह के एक्सपीरियंस इंक्लूडेड होने चाहिए। Let us understand what is the concept of ideal man according to me. According to me, ideal man is a person who is controlled of his emotions and create heaven for most of the people he know. या फिर उसकी सोसाइटी के लिए वो एक बहुत अच्छा समय क्रिएट करता है। He is a strong man with beliefs and principles. First of all, we should know the concept of hell and heaven. I believe that to truly appreciate the richness of heaven and to fully understand its value, you must go through hell first. Going through difficult times can build resilience and strength, making us more capable of appreciating and valuing their positive aspects of life. A person जिसने कभी जिंदगी में बुरे समय देखा ही नहीं, एक आदमी जिसने कभी जंग न लड़ी हो, उसे शांति की कीमत का कोई भी एहसास नहीं होगा। Experiencing a wide range of emotions and situations can lead to a deeper and more nuanced understanding of life. It enriches our perspective, can lead to greater empathy and wisdom. जब एक आदमी बार बार बैड लाइफ एक्सपीरियंसेस और बुरे वक्त से गुजरता है, तब उसे उन लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसे लेसन्स मिलते हैं कि वो सही समय पर सही फैसला लेने के लिए बहुत ही सुटेबल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक गलती किस तरीके से वही सिचुएशंस दोबारा पैदा कर सकता है। Hardships can cultivate a sense of gratitude for the good moments. When we face and overcome challenges, we tend to cherish the positive experience more deeply. तो एक ऐसे जेंटलमैन जो कभी भी हेल से ना गुजरा हो, जो हमेशा एक हाई सोशल लाइफ का हिस्सा रहा हो, जिसके माता पिता ने हमेशा उसे स्पून फीडिंग करी हो, या जिसने कभी बुरा वक्त ना देखा हो, जो ऐसे लोगों के साथ ना बैठा हो जो हर रोज मौत से लड़ते हैं,
तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा एक हेल किसको कहते हैं, एक बुरी चीज इसे कहते हैं, एक बुरा एनवायरनमेंट क्या होता है. A gentleman would, that type of gentleman would not be able to understand the concept of hell, and without understanding the concept of hell, you would not be able to create a good heaven for your loved ones. इसलिए मैं कहता हूँ only a wild man who is now in control of his emotions and driven by the concept of peace can create a heaven, a good heaven, and can be the real ideal man for everyone. Thank you.